عمران خان نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جی، اور وہ سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کئی لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اور یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں، اسلام آباد سے غائب کیے گئے ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے، اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک پری پلان آپریشن تھا، جس کی وجہ سے تمام مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی ہے، اور مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر، ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ عوام رد عمل دیں، اور اس دن ہمارے 25 لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا، معذور کیا گیا، یعنی ان کو گولیاں ایسی جگہ پہ لگیں، ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے خلاف ہی جھوٹے مقدمے بنا لیے گئے، اور 10,000 کارکنوں کو جیلوں میں بھر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت انصاف کو کچلنا تھا، تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر تو مقدمات کا خاتمہ کر دیا گیا، انہیں عام معافی دے دی گئی، اور انہیں 9 مئی سے متعلق کچھ نہیں پوچھا گیا کہ 9 مئی ہوا یا نہیں ہوا، وہ ملوث تھے یا نہیں تھے۔ لیکن جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ان پر پھر قیامت برپا کی گئی، ظلم کی قیامت، اور اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزادانہ جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا، اور جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جناب اس کے بعد آپ کا بیانیہ جو ہے وہ مسترد ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، اس سے بات کیوں کی جائے؟ نواز شریف سیاست کے میدان سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور وہ اب سیاسی کھلاڑی نہیں ہیں، اس لیے میں ان سے بات کیوں کروں، میں اس مردہ گھوڑے میں جان کیوں ڈالوں؟ انہوں نے کہا کہ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں، اور وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اسلام آباد 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے، حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہاں یہ کہا کہ 26 آئینی ترمیم اس لیے ہم نے اس کا حصہ نہیں بنایا کہ وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے، اور اس لیے ہم اس پروسیس کو مطالبات میں ڈال کر لمبا نہیں کرنا چاہتے، ہم مطالبات کا فوری نتیجہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس پی آر کو، انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس پر بھی آرمی کو آئی ایس پی آر کو جواب دینا چاہیے کہ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ اگر آباد کاری سے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا، افغانستان کا معاملہ، انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے، اور کلادن ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور اللہ قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیرپا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2022 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی بھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، اور نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ اگر آباد کاری سے ہی دہشت گردی میں
इजाफा हुआ है तो फिर मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है? और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजूहात से हालात काबू से बाहर हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा और जब तक मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का न सिर्फ एतराफ करना होगा बल्कि तस्दीक भी करना होगी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा, उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है और आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देरपा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा मुमकिन नहीं है। इमरान खान ने जी जो उन्होंने और बातें भी की, उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है और कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं और माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की जरूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की बहुत सारी वजूहात हैं। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया। फौजी अदालतों से सिविलियंस सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है और मिलिट्री कोर्ट्स मुंह काला किया है और फौजी अदालतें और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। इन्हीं वजूहात की वजह से फौजी अदालतों की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का कोई तस्वर नहीं रहा और इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है कि यहां पे कोई कानून भी है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं हो सकता। और आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी बैरूनी सरमायाकारी है। इंटरनेट की बंदिश के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए कोशिश करते हुए मुल्क की आईटी की मईशत को बुरी तरह मुतासर किया गया और मुस्तकबिल आईटी का है, लेकिन आजादी इजहार की कोई है नहीं, इजाजत नहीं है और खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट बंद करना शुरू कर दिया और इतना बंद किया कि सारे का सारा कारोबार रोजगार जो है वो तबाह हो गया लोगों का और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे और वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं इन्हें तबाह किया जा रहा है। और फिर एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निजाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मर्तबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है और आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी का नासूर को जड़ से उखाड़ना मुमकिन नहीं होगा। ये इमरान खान साहब ने ये कहा। एक तफसीली उन्होंने ये सारी बातें की हैं। इसके साथ साथ जी ये क्यों की इमरान खान साहब ने, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी डील्स ऑफर करके उन्हें कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो 9 मई के हवाले से जरा हल्का फुल्का थोड़ा सा हमें दे दें, सेफ पैसे ही दे दें और फिर 26 नवंबर से पीछे हट जाएं, फिर 8 फरवरी से पीछे हट जाएं और हम नए सफर का आगाज करते हैं। तो नए सफर का आगाज करने के लिए जरूरी है कि जरा थोड़ी सी मफाहमियाना किस्म की गुफ्तगू की जाए, मफाहमत की पॉलिटिक्स की जाए और फिर देखे ना कि ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है, तो फिर नून लीग को भी संभालना है, पीपल्स पार्टी को भी संभालना है,
फलां को भी संभालना है और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ख्याल करना है। तो ये इमरान खान साहब को बार बार कहा जा रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने ये सारी बातें जो हैं वो रद्द करते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली जी खास तौर पे उन्होंने अदरवाइज भी उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बताया है, अदरवाइज भी ये तो एक स्टेटमेंट है, अखबारी एक बयान जारी किया गया है, लेकिन उसके अलावा भी इमरान खान साहब ने जो कहा है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। उन्होंने वाजे किया है कि जनाब जो चीजें चल रही हैं, आप मुझे सजा देना चाहते हैं दे दें, कोई हरज नहीं है, और मजीद मुकदमात में भी दे दें, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी जो नाकर्दा गुनाहों की सजा है वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लूं या इसलिए मैं अडॉप्ट कर लूं वो गुनाह जो मैंने किए ही नहीं, लिहाजा ये नहीं हो सकता। अब मामला क्या है? मामला ये है कि हम इंटरनेट बंद करने के मामले में पाकिस्तान जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा चुका है, और हमारा दुनिया में सिर्फ हम म्यांमार से पीछे हैं। म्यांमार और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, म्यांमार हमसे जीत गया है और पाकिस्तान हार गया है इंटरनेट की बंदिश के मामले में, कि सबसे ज्यादा इंटरनेट जहां जिस मुल्क में बंद होता है या बंद किया गया पिछले साल 2024 में वो पाकिस्तान था, और उससे पहले 2023 में जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट बंद किया गया उसमें पाकिस्तान का नंबर 5वां या 6ठा था, और अब पाकिस्तान का नंबर 2रा हो गया है। यानी हमसे नीचे सिर्फ एक मुल्क है, वो है म्यांमार, और वो भी 1000 घंटे का फर्क है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। तो जिसकी वजह से ये हमारी जो है हम पत्थर के जमाने की तरफ जा रहे हैं, और हम बजाय इसके कि तरक्की की तरफ जाएं हम पत्थर की तरफ हमें धकेला जा रहा है। और पाकिस्तान वो मुल्क था जो जहां पे तेज तरीन इंटरनेट, और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेट आईटी की दुनिया में तरक्की करता हुआ मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्कों की साथ में शामिल हो गया था। ये सिचुएशन थी 3G 4G 5G, और फिर आगे से आगे हम जा रहे थे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल हुआ, पॉलिटिकल नैरेटिव को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करनी है, इमरान खान को डिमोलिश करना है, चोरों लुटेरों को लाना है वापस, उसके लिए ये सारा जो खेल खेला गया उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है।